Good afternoon to all of you. My name is Raza Abbas Hydari, and in the last video we have been discussed database, what is data, what is database, what is database management system, and some concept of keys. So we have been discussed primary key. So definition of primary key is what? It is uniquely identifies the record in a given table. Table means we have a table. Suppose this table, and column, in column we store attributes. Suppose employee number, name, salary, and rows contains records. This is called table. So employee name, suppose Raza, Mohsin. So name cannot be a good choice of primary key. Why? Because two person having same name. ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही नेम के हों. So employee number is a good choice for the candidate key because it is unique and it can uniquely identify the records in a given table. So for identifying the candidate key, कैसे हम कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करें, कौन सा कॉलम हमारा प्राइमरी की तरह काम करेगा या कैंडिडेट की तरह काम करेगा. So in a given table, I told you we have more than one candidate key, and one of the candidate key can be chosen as a primary key. So today's topic is identifying candidate keys. So how many candidate keys are possible in a given table, and what are those candidate keys? So before going to identify candidates key, let me give you a quick revision of closure. How to find closure. लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि एग्जाम्पल क्लोजर का कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग दिस कैंडिडेट कीज. सो सपोज दिस इज गिवन रिलेशन, और वी कैन कॉल इट टेबल, एंड दिस टेबल हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 एट्रीब्यूट्स, एंड दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. इट मीन्स इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ए, देन वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. So 1 2 3 4 FDs are there, and we want to find the closure of A. So closure of A, it means with the help of A, how many attributes we can compute. So here we can see closure of A, we can compute A because A मुझे पता है, तो A की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है. Then if we know the value of A, then we can easily go to the value of B and C. So B and C. Now we have BC. Then with the help of BC, we can compute the value of D and E. Then with the help of D, because हमको A पता था, A से हम BC की वैल्यू फाइंड किया हमने, BC से हमने D और E की वैल्यू फाइंड की. Now we know the value of D. Then with the help of this D value, we can easily find the value of F. And then CF. So C, I have value of C and F. So with the help of C and F, we can easily compute the value of G. So it means this is the closure of this attribute A. Similarly, suppose if I want to compute closure of D. So D से हम D हमको पता है. Then with the help of D we can go easily find F. So we have only two values, D and F. But here we can see with the help of F only we cannot find any other attribute. If I know the value of C and F, then these two values together can identify the value of G. But here I have only one value F. It means this is the only closure of attribute D. Similarly, CF. So CF से हमको CF पता है, then CF से हमको G मिल जाएगा, and I think this is the only closure of this attribute. So similarly, we can find the closure of each and every attributes, or so many combinations of these. Like we can compute closure of A, B, C. So we can A और B C कैसे हम कहाँ तक जा सकते हैं वो हम निकाल देंगे इस तरीके से. This is the philosophy behind closure of a attribute. Now हम अब पढ़ेंगे कैंडिडेट की के बारे में जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है.
So for this, we consider this example FD1. So we have relation 1 having A, B, C, D, 4 attributes. So this is relation 1 and having 4 attributes. Attributes means column in a given table. And this is the functional dependency A, B to C, D and B to C. So first, with this given FD, we construct arrow diagram. What is arrow diagram? We just mentioned all the attributes A, B, C, D. Then with the help of AB we can compute CD. It means C and D. ये हम arrow यहाँ लगा देंगे. With the help of D we can compute C. So C हमारा यहाँ पे पहले से ही है. So it means these two attributes AB इनको कोई compute नहीं कर रहा है. It means these are the integral part of the candidate key. मैंने बताया था एक टेबल के अंदर या एक रिलेशन के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट की होती हैं. सो वॉट एवर द कैंडिडेट की, दीज टू एट्रीब्यूट मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट कैंडिडेट की. अगर से हमारा कैंडिडेट की जितना भी हो, 1, 2, 3 जितनी भी कैंडिडेट की होंगी उसके अंदर ए बी उसका पार्ट जरूर होगा. तो नाउ यू हैव टू फाइंड क्लोजर ऑफ ए बी. सो क्लोजर ऑफ ए बी क्या, जैसे बताया था, हमको रूल मैंने बताया था, ए बी से ए बी मिल जाएगा हमको. देन विद द हेल्प ऑफ ए बी वी कैन फाइंड सी एंड डी. इस मीन्स ए बी के हेल्प से हमको क्या मिल गया, ए बी सी डी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए हमको. इट मीन्स नाउ ए बी इज अ कैंडिडेट की. सो वी कैन से ए बी इज अ कैंडिडेट की. ठीक है. अब आप कह सकते हैं कि हमको एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती थी. तो नाउ व्हाट इज द अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन. तो हम यहां ये चेक कर सकते हैं. ए बी हो गया हमारा. नाउ वी कैन चेक ए सी, क्लोजर ऑफ ए सी. सो ए सी, विद द हेल्प ऑफ ए सी वी कैन कंप्यूट लाइक ए एंड सी एंड देन ए C. I think this is the only thing. So it means you can see with the help of AC we can only find the value of A and C, not the value of B and D. It means this is not the candidate key. So अगर से किसी भी कैंडिडेट को हमको फाइंड करना है तो हम उसका क्लोजर निकालेंगे. If that closure contains all the attributes of a given relation, then we can say that attribute or combination of attribute is a candidate key. तो here you can see closure of AB. तो हमने क्या पहले पता किया कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की का इंटीग्रल पार्ट होगा, उसके बिना कैंडिडेट की हो ही नहीं सकती. तो ए और बी मिले हमको. नाउ हमने ए बी का क्लोजर निकाला. क्लोजर निकालने के बाद हमने चेक किया कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी सब के सब हमको यहाँ पे मिल गए. इट मीन्स ए बी इज द कैंडिडेट की. देन वी ट्राई एनी अदर कॉम्बिनेशन लाइक ए सी. तो हमें क्या मिला, ए एंड सी. दिस मीन्स बी एंड डी हमें को नहीं मिल पाए. इट मीन्स दिस नॉट अ कैंडिडेट की. देन वी कैन ट्राई सो मेनी ऑप्शंस आल्सो. तो आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, बट मैंने जो इसको ट्राई किया था हमको सिर्फ यही कैंडिडेट की मिली. एंड यू कैन ट्राई ए बी सी. डेफिनेटली यू कैन गेट व्हाट, ऑल द एट्रीब्यूट, बट दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की. व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू कैंडिडेट की इज द मिनिमल सबसेट ऑफ अ सुपर की. तो यहाँ पे ए बी सी एंड ए बी, तो ए बी इज मिनिमल एज कंपेयर टू ए बी सी बिकॉज सी इज एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर की बट नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की. तो इन दिस एग्जाम्पल are A, B, C, D 4 attributes and this functional dependency FD1 A, B to C, D, B to C, we have only one candidate key, that is A, B. Now let me go to the next example. Second example. In this example we have relation and attributes P, Q, R, S and T. P, Q, R, S and T. So again with the help of given FD, that is FD2 is an example of is an FD on this table. So PQ to R, so let us construct the arrow diagram. This is the first step in identifying the candidate key. So P, Q, R, S, T. So with the help of PQ we can obtain R. So R पे एरो डायग्राम लगा देंगे. एक एरो बनाया.
and S to T. It means PQS ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे कोई अदर एट्रीब्यूट उनको कंप्यूट नहीं कर सकता है. तो दिस मीन्स PQS दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की. इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर से कैंडिडेट हमारे जो भी हो उसमें PQS जरूर आएंगे, है ना. जो भी हमारी कैंडिडेट की होगी इसमें ये तीनों एट्रीब्यूट्स आने ही आने हैं. सो नाउ वी हैव टू फाइंड क्लोजर ऑफ PQS. ये तो हमारे रहेंगे मिनिमल. सो विद द हेल्प ऑफ PQS हमें क्या मिल जाएगा? PQ से R मिल जाएगा और S से T. इट मीन्स PQRST. देन क्लोजर ऑफ PQS क्या आ गया? सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल गए. इट मीन्स PQS इज अ नाउ कैंडिडेट की. हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट की होंगे. तो इसके लिए हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे. थर्ड एग्जाम्पल FD3. I think this one is clear. We have 5 attributes P, Q, R, S, T. Then with the help of given FD2 we have constructed this arrow diagram. इसके बाद हमने फाइंड किया कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं कैंडिडेट की के. तो हमें मिला PQS एंड PQS का हमने क्लोजर निकाला तो हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल गए. इट मीन्स PQS इज कैंडिडेट की. Then third example FD3. Then we have attributes or relation A, B, C, D and E. So here again we construct arrow diagram. A, B, C, D, E. So BC to ADE it means A, E, E and D to B. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि सी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको कोई एट्रीब्यूट कंप्यूट नहीं कर पा रहा है. सो सी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की. सी के मीन्स कैंडिडेट की. तो हम क्या करें? क्लोजर ऑफ सी निकालेंगे. सो क्लोजर ऑफ सी इज व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सी बट हमको सी मिलेगा जो खुद सी है. एंड इन दिस एग्जाम्पल सी से हम कुछ और फाइंड BC से हमको AD मिलेगा. सी से हमें कुछ नहीं मिलना बिकॉज सी लेफ्ट हैंड साइड कहीं है ही अकेले जो कुछ पता कर सके किसी और एट्रीब्यूट के बारे में. सो इट मीन्स हियर यू कैन सी इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैंडिडेट की एंड क्लोजर ऑफ सी इज ओनली सी. तो नाउ सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की. सो अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें सी जरूर आएगा बट सी खुद कैंडिडेट की नहीं. जो बिकॉज क्लोजर ऑफ सी कंटेन्स ओनली सी. If this closure contains all the attributes, जैसे मैंने अभी देखा पिछले एग्जाम्पल में, then C will become candidate key. But here C closure of C is only C only. So C is not a candidate key. So now let me check other combination. तो C तो है नहीं. अब चेक कर लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन में. जैसे हमने चेक किया सपोज तो सी तो होनी होना है. तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? A, B, D एंड E और C सब में होना है. इट मीन्स वी हैव कॉम्बिनेशन AC, BC, DC, EC. ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा हमारे पास क्योंकि C सब में आना है. तो 4 एट्रीब्यूट जो बचे हुए हैं उनके साथ C का कॉम्बिनेशन लेके चेक कर लेंगे उनका क्लोजर निकाल के. सो नाउ लेट मी चेक क्लोजर ऑफ AC, BC, DC एंड EC. Closure of AC. So with the help of AC we can find only A and C. Then AC. So C अब यहां से हमें कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि BC से हम AD पाएंगे. B हमारे पास है नहीं एंड D से हमको B मिलेगा. D हमारे पास नहीं. तो क्लोजर ऑफ AC is only AC. It means this is not a candidate key because it closure contains only A and C, not all the attributes. जब क्लोजर निकालने से हमको सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे then we can say that this is a candidate. It is not a candidate. Then BC से B और C तो मिलेगा हमको. Then next B and C. So BC से क्या मिल गया हमको? ADE मिल गया because BC हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट में क्या AD है. तो विद द हेल्प ऑफ BC we can easily compute the value of AD and E.
So A, D, E. Now we can see A, B, C, D सारे एट्रीब्यूट आ गए. It means this is an example of candidate. So BC is an example of candidate key. AC नहीं है क्योंकि AC में सारे एट्रीब्यूट नहीं आ पाए थे. BC के अंदर सारे आ गए, BC है. नाउ BC चेक करते हैं. BC में D और C तो रहेगा ही रहेगा. D से क्या है? If we know the value of D, then we can easily find the value of D. यहाँ B आ जाएगा. नाउ BC से क्या आ जाएगा? Because D से B मिला और B और C से क्या मिल जाएगा? A, D and E. A, D and E. Here also you can see all the attributes. So BC is also example of candidate key. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था, एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है. दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस. तो यहाँ पे BC भी कैंडिडेट की है और DC भी कैंडिडेट की है और सबके अंदर C रहेगा ही रहेगा बिकॉज C इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की. नाउ लास्ट वन इज EC. BC, AC, BC, DC एंड EC. EC चेक कर लेते हैं यहीं पर. तो EC से E और C तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास. एंड E और C. अब C alone is not capable enough to find the value of ADE, तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो EC ही रह जाएगा इसका. So here also it is not a candidate key. Okay. Why? Because it contains only E and C, not all the attributes. So BC and CD, these are two candidates key for this given table. So इसको हम अलग से लिख देते हैं जन. क्या आया था? BC and CD. ये दो कैंडिडेट की हमारे थे. अब हम चेक करेंगे कोई और कैंडिडेट की हो सकता है पॉसिबल. ये चेक करने के लिए इट मींस AC एंड EC. ये तो कैंडिडेट की थी नहीं हमारी, ये भी नहीं थी, ये तो कैंडिडेट की हमारे थी. सो अब कॉम्बिनेशन क्या बच गया हमारा? ACE. अगर इनको कंबाइन कर दे क्या होगा? AEC. ये कॉम्बिनेशन बचेगा. क्यों? क्योंकि अगर से कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं हमारी, इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, इसमें हम A अगर से ऐड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कैंडिडेट की है. अगर इसमें कुछ भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुपर की बन जाएगा, कैंडिडेट की नहीं रहेगा. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दिस वन, AEC. तो AEC को चेक कर लेते हैं क्लोजर लेके. तो AEC से हमें क्या मिलेगा? AEC एंड AEC. नाउ C एलोन कुछ नहीं फाइंड कर सकता, A कहीं है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में और D भी यहाँ पे है नहीं इसमें. तो आई थिंक AEC. ये भी क्या है? नॉट कैंडिडेट. क्यों? क्योंकि इसके भी सारे एट्रीब्यूट ये AEC कर पा रहा है, B और D को कंप्यूट नहीं कर पा रहा है. इट मींस दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट की. तो यहाँ पे आपने चेक किया, हमने देखा कि एक गिवन रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट दिस कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स. मान लेते हैं अज्यूम दैट कि यहाँ पे D भी आ गया और D भी आ गया. तो अब आप कह सकते हैं कि आपने कहा था सर कि मिनिमल सुपरसेट कैंडिडेट की होती है. तो यहाँ पे BC कैंडिडेट की इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, CD कैंडिडेट की इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, और आपने कहा ये भी कैंडिडेट की है. अज्यूम दैट इट इज ए कैंडिडेट की, इट कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट क्लोजर. तो यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट हैं. तो मिनिमल तो दो, ये तो होगा, ये कहां से हो जाएगा? तो मिनिमल का मतलब ये है कि इसका कोई सबसेट ना हो. तो BC इज नॉट ए सबसेट ऑफ AEC, CD इज नॉट ए सबसेट ऑफ AEC. ओके. तो AEC का कोई सबसेट ना हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो या जिसका क्लोजर सारे के सारे एट्रीब्यूट ले रहा हो. तो अगर से इसका क्लोजर निकालने पे भी क्या आ गया होता, सारे एट्रीब्यूट आ गए होते, तो ये भी एग्जांपल होता कैंडिडेट की का. तो मिनिमल का मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू सम कैंडिडेट की. मिनिमल का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसका कोई सबसेट ना हो, ये है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन हैविंग दिस FD एंड मोर देन वन कैंडिडेट की. एक एग्जांपल और एक है FD4. इसको चेक कर लेते हैं. So now this example, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. 5 attributes and FD is given AB to CD, FD4. We are discussing relation 4 with FD4. AB to CD, D to A, BC to DE. So again arrow diagram with the help of given FD. This is the first step.
तो कैसे बनते हैं एरो डायग्राम? ए बी सी डी ई लिख देंगे यहां पर हम, ए बी सी डी ई। अब क्या है, ए बी से क्या फाइंड करेंगे? सी एंड डी, तो सी और डी पे एरो लग जाएगा। डी से क्या फाइंड करेंगे? ए पे आया। बी सी से क्या फाइंड करेंगे? डी और ई। डी बी सी से क्या फाइंड करेंगे? डी एंड ई। तो डी तो पहले से ही है। और अब यहां पे क्या है, देखिए बी आया एग्जाम। सो बी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, बिकॉज बी को कोई अकेले आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो बी इज एन इंटीग्रल पार्ट। सो नाउ वी फाइंड क्लोजर ऑफ बी। ये तो कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें बी रहेगा ही रहेगा, तो इसका हम पहले इसको अकेले ट्राई कर लेते हैं। अगर इसका क्लोजर सब आ जाएगा बी, दिस इज द कैंडिडेट की, तो क्लोजर ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी का बी रहेगा। एंड एफ डी में बी एलोन इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू आइडेंटिफाई सी एंड डी, और बी के साथ सी का ही कॉम्बिनेशन आ पाएगा, इट मीन इट इज ओनली बी। आप चेक कर सकते हैं कि बी से क्लोजर निकालेंगे तो बी आएगा, क्योंकि बी लेफ्ट हैंड साइड में एलोन कहीं है ही नहीं, जिससे कोई राइट हैंड साइड की वैल्यू को मिल सके। तो दिस इज बी इज मीट नॉट अ कैंडिडेट। Why? Because it does not contain all the attributes of given relation. Not candidate. अब क्या करेंगे? अगेन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो क्या होगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन? बी हमारे पास है, ये हमारे पास ए सी डी ई, ये बचा हुआ एट्रीब्यूट है। अब बी सबके अंदर आना है, तो बी सबके अंदर का मतलब क्या है? ए और बी ट्राई करेंगे, देन वी विल ट्राई सी बी एंड सी, डी एंड बी एंड ई एंड बी। सो क्लोजर ऑफ ए बी, क्लोजर ऑफ बी सी, क्लोजर ऑफ डी ई, क्लोजर ऑफ बी। देन चेक करेंगे इनका क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स अगर से ले लेगा तो कैंडिडेट की हो जाएंगे, अदरवाइज कैंडिडेट की नहीं होंगे। लेट मी जस्ट ट्राई वन। बिकॉज बी हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो ए बी पहले ट्राई कर लेते हैं। तो ए बी से क्या आ जाएगा? ए और बी खुद आ जाएंगे पहले। इसका मतलब क्या है? ए बी का जिसे हम कहते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी का नाम पता है, जैसे मेरा नाम रजा है, अब कोई पूछे रजा तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम बता ही रहा है मेरा, ठीक है, तो वो ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई। तो वही चीज है, ए बी से ए बी मिल ही जाएगा हमको, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी। जैसे आपको एनरोलमेंट नंबर पता है, तो कोई पूछे कि आपका एनरोलमेंट नंबर बोल के पूछे क्या एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको तो पता ही एनरोलमेंट नंबर ना आपको, तो इसका ट्रिवियल डिपेंडेंसी। देन ए बी से क्या क्या आ जाएगा? चेक कर लेते हैं। ए बी से सी डी आ जाएगा, एंड देन डी से हमको ए, तो मेरे पास चाहिए बी और सी, बी और सी से क्या आ जाएगा? डी और ई, यानी ई आ जाएगा। इट मीन्स क्लोजर ऑफ इट ऑल द एट्रीब्यूट्स, दिस इज अ कैंडिडेट की। देन सी बी, अब बी सी चेक कर लेते हैं ना, सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे। तो बी सी से बी और सी आएगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी, दिस वन वी कैन फाइंड डी एंड ई, तो डी और ई लिख देंगे, एंड देन डी से ए मिल जाएगा हमको। अगेन ये भी क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की एग्जांपल है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स। देन बी और डी चेक कर लें, तो बी और डी तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, एंड बी अकेले कहीं है नहीं, डी अकेले है, वहां से ए मिल जाएगा हमको। डी कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ ए। नाउ ए एंड बी, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी वी कैन फाइंड सी एंड डी। तो सी है, डी पहले से ही है, एंड नाउ बी एंड सी वी कैन फाइंड ई। तो आप यहाँ चेक कर देख रहे हैं कि एक वैल्यू से हमें बहुत सारी वैल्यू मिल जा रही है, दिस इज ऑल्सो कैंडिडेट की। यहाँ देख रहे हैं एक से ज्यादा कैंडिडेट की हमारे होते जा रहे हैं, है ना। ए बी इज ऑल्सो कैंडिडेट की, बी सी एंड बी डी आर ऑल्सो कैंडिडेट की। नाउ ई डी, ई और डी तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास। नाउ डी से हमें क्या मिल जाएगा? ए एंड देन बी, बी कहीं अकेले ए बी, यस ए बी हमारे पास है, दोनों हमारे पास वैल्यू हमारे पास दोनों है ए बी से सी डी मिल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो ए बी, बी सी, बी डी, ई डी सब के सब क्या है? कैंडिडेट की। तो यहाँ पे आपने चेक किया एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं, तो दीज आर पॉसिबल कैंडिडेट की। तो दिस is all about candidate key, how we can find candidate key and what are those candidate key. These are the whole process. Thank you so much.
आज हम टिम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पहले तो हम ये देखेंगे कि टिम्बर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टिम्बर का यूज हम मेनली डोर्स और विंडो के फ्रेम्स में करते हैं। और पुराने टाइम में तो ये बहुत सी जगह और यूज होता था, एज ए बीम यूज होता था, एज ए कॉलम यूज होता था। बट आज के टाइम पे हम देखेंगे तो टिम्बर का यूज धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बाकी जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम है। जैसे एल्युमिनियम, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत कम है और उसका कास्ट कम है। और अगर एल्युमिनियम और हम टिम्बर का कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो वेट है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, वो ज्यादा है टिम्बर के कंपैरिजन में। टिम्बर आज के टाइम पे कॉस्टली है। और अगर एज ए आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे कि टिम्बर का मैक्सिमम यूज एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो आज के टाइम पे हम टिम्बर को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके कई रीजन है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि टिम्बर का कास्ट ज्यादा है। और दूसरा, आज के टाइम पे जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। और जब आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस हो वो हम कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं, वरना हमारा प्रोजेक्ट और डिले होता जाता है और क्लियरेंस में हमें ज्यादा टाइम लगता है। और हम ये देखते हैं डे बाय डे कि टिम्बर को हम रिप्लेस कर रहे हैं एल्युमिनियम से। और इस पे बहुत सी बुक्स आई हैं जिन्होंने लिखा है कि एल्युमिनियम इज द फ्यूचर मेटल। और मैक्सिमम यूज अगर आप आज के टाइम में अपार्टमेंट्स में देखेंगे तो डोर विथ फ्रेम एल्युमिनियम ने रिप्लेस कर दिया है टिम्बर को। बट अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लुक और फिनिशिंग, तो टिम्बर कई मायनों में भी बहुत अच्छा है बाकी मेटल से। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि साउंड कम जनरेट करता है टिम्बर। दूसरा है आपका कि वो टिम्बर साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक जो टिम्बर है उसके कुछ क्लासिफिकेशन पे। तो टिम्बर को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि टिम्बर को एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक्सोजीनियस जिसमें ग्रोथ आउटवर्ड होता है और एंडोजीनियस जिसमें ग्रोथ इनवर्ड होता है। हम अगर एंडोजीनियस का एग्जांपल देखना चाहें तो बैम्बो केन, पाम ट्रीज, ये एग्जांपल होते हैं। एंडोजीनियस जो ट्री होते हैं उनका इंजीनियरिंग में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत कम यूज है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम होती है बैम्बो को छोड़ के। बैम्बो की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली काफी अच्छी होती है। अगर आप पहले के टाइम में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां पे आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट में स्टील रॉड यूज कर रहे हैं, पहले के टाइम में हम वहां पे कुछ जगहों पे हम बैम्बो की स्ट्रिप्स भी यूज करते थे। आप उसके सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो दूसरा है एक्सोजीनियस ट्रीज। इनका ग्रोथ आउटवर्ड होता है। और फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहेंगे तो टीक, शीशम, साल, ये सारे वुड इसमें कंसीडर किए जाते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। अब हम उसके सेकेंड स्टेप के क्लासिफिकेशन पे आएंगे। एक्सोजीनियस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है डेसिडियस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हार्ड वुड भी कहते हैं। सेकेंड वन है आपका सॉफ्ट वुड और द कोनिफर।
एज ए इंजीनियर हमें डेसीडियस के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, कोनिफर के बारे में कम, क्योंकि कोनिफर सॉफ्टवुड होता है और इसकी स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है डेसीडियस के कंपैरिजन में। डेसीडियस और कोनिफर में कुछ हम डिफरेंस देखेंगे। जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं हमारे वो कंपेरेटिवली डार्क इन कलर होते हैं और सॉफ्टवुड जो कोनिफर होते हैं वो लाइट इन कलर होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखना चाहेंगे तो डेसीडियस जो ट्रीज है हमारे, ये ऑटमन के सीजन में, पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन कोनिफर जो ट्रीज हैं इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन इनको भी कहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। इनमें फ्रूट्स या लीव इनके जो होते हैं वो निडल शेप के होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड टिम्बर। प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड टिम्बर। टिम्बर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या प्रॉपर्टी रखना चाहिए एज ए फॉर यूज ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टिम्बर कवर करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिफेक्ट फ्री। हमारा टिम्बर डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट्स टिम्बर में कई रीजन से हो जाते हैं। पहला तो सीजनिंग की वजह से हो जाता है, दूसरा हम देखेंगे तो डिफरेंट फंगल एक्टिविटीज के कारण हो जाता है, इन अर्ली स्टेज विंड के कारण हो जाता है, नेचुरल फोर्सेस के कारण हो जाता है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट एंड हाउ टू प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर इज डन। आज के क्लास में हम 3-4 प्रॉपर्टीज और हेडिंग वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है इलास्टिसिटी, डिफेक्ट फ्री, इलास्टिसिटी, कलर, हार्डनेस और फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस टिम्बर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टिम्बर फायर रेजिस्टिव नहीं होता है तो फायर ब्रेकआउट के टाइम में टिम्बर एक बड़ा काज होता है सीवियर डैमेजेस का, बिल्डिंग्स के और लाइफ के लिए भी। तो आज हम अपने आप को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और हमने जैसे कि देखा कि आज हमने टिम्बर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायर होती हैं उसके बारे में पढ़ा, और आज के टाइम पे हमारे टिम्बर के क्या क्या क्लासिफिकेशन, टिम्बर के क्या क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है एल्युमिनियम। बाकी आने वाले टाइम में हम टिम्बर के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके डिफेक्ट्स को कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीजनिंग के डिफरेंट तरीके के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।